بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی مشہور درزی تھا۔ وہ گھر کے ایک محسوس کمرے میں بیٹھ کر سلائی کرتا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حیرت کی بات تھی، وہ جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا تو اگلے ہی دن اس لڑکی کی شادی ہو جاتی۔ میرا نام آسما ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو پہچانا نہیں اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا۔ لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو گئی تھی جس پر یقین کرنا کوئی بھی آسان کام نہیں تھا۔ میرا بھائی شیروں سے بہنوں جیسا تھا۔ بہنوں جیسے بھائی سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتا تھا۔ اور میری ایک بہن اور بھی تھی جس کی ہم نے شادی کروا دی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا۔ اسے زیادہ پتا ہوتا کہ کس کلر کے سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ چلے گا۔ اسے ایسی باتوں کا بہت پتا تھا۔ شاید یہ اس کا کام تھا، اسی وجہ سے اس لیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کر لیتا۔ بس یوں سمجھے کہ اس کو عورتوں کی باتوں کا بہت زیادہ پتا تھا اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو اپنے دکھ کی بات بھی کر لیتی تو دل کو بہت سکون ملتا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ اس کی شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اس سے کپڑے سلواتے۔ میرے بھائی نے گھر میں ایک ایسا کمرہ بنا رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ کسی کو اندر نہ آنے دیتا، بلکہ اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کر لیتا۔ کبھی وہ رات کو وہیں سو جاتا اور ہم کھانا دروازے پر رکھ کر آ جاتے۔ اس کی حرکتوں پر کبھی کبھار ہمیں بہت غصہ آتا تو کبھی رحم بھی کہ وہ بیچارہ یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے، رات بھر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے۔ لیکن جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ بات یہ تھی کہ میرا بھائی درزی رشید جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے تو بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن پھر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ شروع میں اس بات کا بھی بہت مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے میرا بھائی رشتہ کروانے والا پیر ہو جس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگی۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا اس کا جلد ہی رشتہ ہو جاتا۔ لیکن ہمارا بھائی مجھ سے یا میری بہن سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ جب ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا، زیادہ پوچھتے تو وہ غصہ ہو جاتا اور ڈانٹ بھی دیتا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک دن صبح ہمارے گھر ایک لڑکی اور اس کی ماں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ کچھ پھل بھی لائی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ میری بیٹی کی عمر 27 سال ہو گئی تھی، کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے تو اس کی شادی ہو گئی اور ہم کو وہ مٹھائی دینے آ گئے۔ میں نے تو مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور سائڈ پر ہو گئی۔ چلو اسی بہانے مٹھائی تو ملی ہے، لیکن میری ماں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے، کوئی مبارکباد دینے آتا تو کوئی اس کے بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ میرا بھائی کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن اس کام میں غلط کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ تو صرف کپڑے سیتا اور کپڑے سینے میں کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو بھائی سے کچھ بھی پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتا، لیکن میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا کہ وہ خود تو کپڑے سلوانا چاہتی ہے، لیکن میرا بھائی ٹائم نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی تھوڑی سی سفارش لگا دوں گی، لیکن اسے مجھے کچھ بتانا ہوگا کہ میرے بھائی نے اس سے کیا بات کی اور میری دوست کا رشتہ کیسے ہوا، کیونکہ میری دوست بھی میری عمر کی تھی، اس کی شادی بھی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میری دوست آپ سے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں، اسے کہو کہ 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے، اس طرح وہ بھی آپ کی بہن ہوئی۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا کہ تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی پلیز اس کی بات مان لیجئے، اسے بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں گے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے 1 ہفتے بعد بیچ دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑوں کا ناپ دیا۔ ناپ کے کپڑے صحیح نہیں لے کر گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اسی لیے اسے گھر کا ایک چکر لگانا پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑوں پر کھلا کلر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا پھر ایک اور چکر لگ گیا۔
फिर पूछने के लिए गई कि कपड़े सिल गए हैं या नहीं। तो फिर उसका घर पर एक और चक्कर लगा और फिर आखिर में 2 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने उसे अपनी दुकान से 5 चक्कर लगवा लिए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहन लो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही ये कपड़े पहनते हैं तो रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुम्मे वाले दिन कपड़े पहन ले और पूरा दिन गुजर गया। शाम को उसकी कॉल आई तो उसने जो बताया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आ गया है और मुझे भी। लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू करता है। वो तो अपनी ही फिक्र में लग गई थी। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है और हमारे घर में भी कोई अजाब आ जाएगा। वो अपनी बातों में लगी रहती थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो वही बातें कर रहे थे जो आम दर्जी करता है कि आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए और इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सीता था। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बड़ी बहन की शादी तो बहुत जल्द करवा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी ना करवाता था। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठा था। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त की निकाह पर बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि इसने भी रशीद दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं, लेकिन वो सबको वक्त नहीं देता। ये तो किस्मत की बात है, रशीद जिसको वक्त दे दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करके वक्त निकलवा दो। मैं क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद नहीं टाइम देता, तुम लोगों को क्या टाइम देगा। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह डाली। वो हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो बाकायदगी से रोना शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था और छुप कर जाना था। मैं बुर्का नहीं पहना करती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्का ले लिया। वैसे भी उसकी शादी हो गई थी, उसने पुराने बुर्के का क्या करना था। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी बदलनी थी, इसलिए मुंह के अंदर रुई रख ली और चेहरे पर नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेहरबानी करो और मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा कि मैं शादियाँ नहीं करवाता, मैं सिर्फ कपड़े सीता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट लिए थे। पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी से पैसे लिए और वहाँ पहुँच गई। साथ में कपड़ों का नाप भी था। मेरे भाई को पता था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों को कौन सा नाप लगता था। वो तो वैसे भी अपने काम में मसरूफ रहता था। मेरे भाई ने मुझसे मेरे कपड़ों का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वो भी थोड़ी आगे पीछे बता दी। फिर पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करते हैं, सारा कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई आम तरजी वैसे ही इतनी डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन बातों बातों में वो मुझसे बात निकलवा रहा था और बड़े तरीके से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा था। उसने बातों बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर, तालीम और ये कि कितनी पढ़ाई की है, सारा कुछ पूछ लिया। फिर कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते नहीं हो पा रहे, लड़कियों की फरमाइशें भी इतनी होती हैं, आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में न जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैं बेस बदले खड़ी थी, वैसे ही बहुत डर रही थी। मैं भी सारा कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा कि आपके कपड़े मैं 2-4 दिन में सी दूंगा, इसलिए आप 4 दिन के बाद आएँ। मैंने कहा कि अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं, तो उसने कहा कि बीच में एक चक्कर लगा लीजिएगा। अगले चक्कर में उसने मुझसे ऐसी ही बातें की। फिर 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मुझे ये तजस्सुस था
कि उस कमरे में वो क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर बाई कमरे को जब लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान रह गई क्योंकि उस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा था, एक मशीन रेशमी कपड़ों के लिए और एक सूती कपड़ों के लिए, वैसे ही जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियाँ बिखरी हुई थी, इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर पड़े थे। रजिस्टर की तरफ बढ़ी, मैंने देखा वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या हिसाब किताब कि इतने बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे। वो भी बहुत पुराने लग रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज़ आई। मैं डर के मारे खिड़की से वापस भाग गई। मेरा दिल पूरी तरह से बैठ गया था, लेकिन भाई ने मुझे नहीं देखा था और कोई चीज़ भूल गया था और वही लेने के लिए वापस आया था। मैंने सोच लिया कि दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही थी और दूसरा धोखा नहीं देना चाहती थी। उसे पता चला तो न जाने क्या करेगा। अम्मा मेरी तो नहायत मासूम थी, वो तो किसी बात को समझती ही नहीं थी और ये सब मुझे ही पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाने थे और मैं कपड़े पहन लूँगी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं बताया। वैसे भी वो शादी करके मसरूफ़ हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने गई तो मेरे भाई ने मेरा नाम फिर पूछा, कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा कि जी आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वो कपड़े लिए और वहाँ से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैंने कपड़े देखे तो कपड़े बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूँगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने जुम्मे के दिन को ही मुनासिब समझा। जुम्मे का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन तक मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी ताकि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी मैं वो कपड़े पहनकर अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। जुम्मा वाले दिन मैंने वो कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरी दोस्त ने भी रात को ही खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने अम्मी से कहा कि घर को साफ रखें। न जाने मुझे इस बात पर क्यों यकीन सा हो रहा था कि सारा कुछ हो चुका था। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, हमारे घर कोई भी ना आया था। अगले दिन मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आई। उसने कहा कि हमारे घर कुछ लोग आए थे, बहुत ही अजीब लोग थे और कह रहे थे कि हम नजमा नामी लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उनके साथ था, देखने में काफ़ी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में तो कोई नजमा नामी लड़की नहीं थी और ना ही हमने उन लोगों को बुलाया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहीं पर आने को कहा गया है। वो तो जिद पकड़ कर ही बैठ गए थे, बस आप नजमा को बुला दें, हमने लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। अम्मी ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देर थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है तो मैं अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसलिए अपने खाला के घर का पता लिख दिया, क्योंकि मुझे इसी मोहल्ले का पता लिखना था और मैं उसको गलत नहीं बता सकती थी और ना ही लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नजमा बताया था। इसका मतलब यह सब कुछ सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया था उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई में रिश्ता आया था। जाहिर है मैं तो घर का पता नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडला रही थी। अपनी अम्मी को यह सब बताने की कोशिश कर रही थी और मैं ये भूल गई थी कि मैं उसी के सिए हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उसने कहा कि झूठी मकार तो बेस बदल कर मेरी दुकान पर आई थी, मेरी जासूसी करना चाह रही थी, मुझसे झूठ बोला था। इसने मुझसे झूठ बोला है अम्मी। यहाँ तक कि आवाज़ भी बदली थी। तुम्हारी बेटी कितने ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो अम्मी को उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा ही राज खोल दिया। अम्मा ने कहा कि तुम्हारा भाई भी धोखेबाज है और तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना मैं ऐसी थी। पता नहीं किसकी वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए हो और तू भी ऐसी हरकतों पर उतर आई है। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने घर का ही बेदी लंका डालता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए मेरे पास आई थी। मैं कोई गलत काम नहीं करता, ना कोई जादू करता हूँ। मैं तो बहुत ही अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था। लेकिन तुम तो जानते हो कि लोग कदर नहीं करते,
एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा। मेरे से ज़्यादा काम करवाता लेकिन पैसे कम देता था और मेरी वजह से ही उसकी दुकान चलती थी। वो मुझे मेरी उजरत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूँगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं और दर्जी का नाम मशहूर होने के लिए सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत से अच्छे रिश्ते मौजूद थे। मेरे पास जब भी कोई कंवारी लड़की आती तो मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है या कंवारी, और बातों बातों में मैं उससे पूछ लेता कि उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, खानदान कौन सा है, ज़ात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है या किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था और मैं औरतों से बात करते में सब कुछ निकलवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम ज़रूर होती हैं, जो कि किसी की भी बातों में आ जाती हैं। दर्जी हो या दूध वाला या किसी भी दुकानदार से बड़े खुले अंदाज में बातें कर लेती हैं, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता हो। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा कि टारगेट करता था, मेरी अम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा और मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया। लेकिन उसने माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका मतलब ये नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी मालूमात निकलवा लेता और फिर उस मालूमात के ऐन मुताबिक अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवा लेता और रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भिजवा देता। तो जब उनको उनके मतलब की चीज़ मिल जाती तो वो इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। वो रजिस्टर जो मैंने भाई के कमरे में देखे थे वो भी शायद शादी के रिश्तों की मालूमात से भरे थे। मेरे भाई ने कहा कि यह बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को मशकूक बना लिया और बदतमीज़ बन गया ताकि लोग मुझसे ज़्यादा सवाल ना करें। और यूँ मैं किसी रिश्ते करवाने वाले दर्जी के नाम से मशहूर हो गया। मेरे काम में भी बहुत बरकत आ गई और मेरे उस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 12 क्लाइंट बामुश्किल आते थे। अब हर हफ्ते में एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ऐसे करते हैं तो इसमें भला बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अगर अब भी तेरा दिल करता है तो मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार दे। अम्मा ने सर झुका लिया और भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार करने लगी। फिर मैंने कहा कि अगर भाई ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई, मैं तो तेरी अपनी बहन हूँ। उसने कहा पागल, मैं तेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तो बस समझ के तेरा भाई कुछ मुश्किलों में फंस गया था और सारा दिन यही सोचता कि आज ये काम करूंगा, और यूं काम करते करते इतना वक्त गुजर गया। लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देख लिया है। तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें हाली हाथ रुखसत करूं? पहले तुम्हारा जहेज भी तो बनाना था, बस वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा आंखें फाड़कर पर्दे के पीछे भी देख लेती। मैंने पर्दे के पीछे नहीं देखा था क्योंकि मुझे वहाँ कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ कपड़े ही होंगे। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना, और अब शादी की तैयारियां करो। जो चाहे मुझे लिस्ट बना कर दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। उसका तरीका शायद बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादियां करवा रहा था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भागते हैं। आजकल की लड़कियां तो बस अपनी पसंद से शादी करवाना चाहती हैं। मैं तो सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे अपने भाई पर फख्र है।